Hello everyone. In today's class, we are going to see the K law. K laws. So K stand for what? Kirchhoff. Kirchhoff's law. Okay. तो when we talk about the K law, जो हमारा Kirchhoff law है, so it's basically divided into the two part. What it is? First is your KCL, and the second one is your KVL. So what it is? Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage law. So in today's class we are going to see the Kirchhoff law, and then we are going to see we are going to combine this Kirchhoff law with the Ohm's law and find out the mesh analysis and the nodal analysis. Okay, so when we talk about the KCL, let me go for the first part. What it is? The KCL. So when we talk about the KCL, it is defined at node. जो KCL है वो क्या होता है? It is defined at node. तो किस नोड पे डिफाइन होता है? हमारे पास जो है जो नोड होते हैं, that nodes are what? Two types. First is a simple node and the principal node. So what do you mean by the simple node? So simple node क्या होता है? Where two connections are only there. Okay, so let me write it here. Simple node is the interconnection of only two branches. एंड जो प्रिंसिपल नोड होता है, वो प्रिंसिपल नोड क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल नोड, is the interconnection of at least three branches. ओके, सो अगर हम लोग किसी भी नोड के बारे में बात करें, सो फॉर एग्जांपल के लिए लेट मी कंसीडर दिस नोड. यहाँ पे जो है ना, दिस इज माय वन ब्रांच एंड दिस इज माय द सेकंड ब्रांच. This is what? This is my branch 1. This is my branch 2. So only I have a 2 branch. Then ये this node, इस node को अगर हम लोग A बोले, so A is a simple node. So it's a what? Simple node. और अगर यहीं पे हम लोग जो है किसी ब्रांच को बोले, फॉर एग्जाम्पल I have this B1, I have a B2, I have a B3, I have a B4, B5. So this particular node, okay, this particular node is what? Principal node. So what it is? Principal node.
So whenever the nodes are at least 3 or it will be greater than 3, more than 3 branches. Okay, so if it is only 2 branches, then it's a simple node. If it is a more than 3 branches, then it's a principal node. Okay, so let me go to the this KCL. So how we are going to define? If we will go for the definition, let me write it here first. Definition. So definition of what? KCL, right? We are looking at KCL. So KCL को जब हम लोग बोलते हैं तो क्या होगा? इन अ लम्प्ड इलेक्ट्रिक सर्किट for lumped electric circuit for any of its node and at any time t, the algebraic sum of current leaving the node is 0. So what it means? For example, this is a node, let me tell A. So if it has a one branch, so this is node, right? Let me define in the both the direction. So if it is a incoming, that is outgoing, incoming, and let me consider the another branch, so that is also outgoing. So this is what I1, this is what I2, I3, I4 and I5. So what it says कि इस नोड से जाने वाला, आउटसाइड, लीविंग, इस नोड से लीव करने वाला जो एलिजेब्रिक सम होगा करंट का, वो क्या होगा? दैट इज ऑलवेज गोइंग इक्वल टू बी 0. सो व्हाट इट मीन्स कि यहां से बाहर क्या जा रहा है? -I1. दिस इज योर नोड ए. नोड ए से लीविंग कौन सा है? -I1. यहां से क्या होगा? -I2. दिस इज +I3. ये देखेंगे तो +I4. ये क्या हो रहा है? -I5 इज इक्वल टू 0. ओके, सो अगर इसी चीज को हम लोग जो है रीराइट करें तो व्हाट इट विल बी? I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू I3 प्लस I4 और यहां पे आ जाएगा आपका I5. सो I5 प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4. सो व्हाट इट सेज, यहां पे अगर हम लोग देखें, सो दिस इज व्हाट इनकमिंग, दिस इज व्हाट इनकमिंग, दिस इज व्हाट इनकमिंग. तो ये जो 3 इनकमिंग है दैट इज इक्वल टू आउटगोइंग. तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं? हम लोग व्हाट वी कैन राइट सम ऑफ इंटरिंग करंट is equals to sum of leaving current.
Okay, so let me go to the another part of this. We know that what I is equal to what dq upon dt. वी नो दिस I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी. हम लोगों को पता है कि जो है क्या होता है, करंट इज अ टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो व्हाट वी विल राइट. सो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू डी क्यू वन अपॉन डी टी. I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू टू अपॉन dt. so let me put it here. so क्या हो गया, dq1 अपॉन dt प्लस dq2 अपॉन dt प्लस dq5 अपॉन dt that is equal to dq3 अपॉन dt प्लस dq4 अपॉन dt. वी कैन राइट इट हियर, क्योंकि हमारा करंट क्या होता है, दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज. तो करंट क्या होता है, हमारा फ्लो ऑफ चार्ज होता है. सो वी आर एबल टू राइट डी क्यू अपॉन डी टी प्लस डी क्यू अपॉन डी क्यू वन क्यू टू क्यू फाइव क्यू थ्री क्यू फोर. ओके, सो वी कैन राइट दिस. तो यहाँ से जो है ना हम लोगों को एक और एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा कि दैट Q1 प्लस Q2 प्लस Q5 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4. Okay, so what it means, what it says that sum of entering charge is equal to sum of leaving charge. Okay, so sum of entering charge is equal to sum of leaving charge. ओके, सो अनदर थिंग व्हाट वी हैव फाउंड, हम लोगों को क्या पता है कि दैट Q जो चार्ज होता है, दैट Q इज नथिंग बट द N इंटू ई. ई क्या है, E इज अ इलेक्ट्रॉन, N इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो Q इज नथिंग बट द N इंटू ई. तो इसी चीज को अगर यहाँ पे हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, N1E. Q2 इज इक्वल टू N2E. ओके, इन दैट वे. तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वी कैन राइट इट हियर व्हाट, N1E प्लस N2E प्लस N5E इज इक्वल टू N3E प्लस आपका क्या हो जाएगा, N4E. तो ये सारे के सारे E कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N5 इज इक्वल टू N3 प्लस N4. ओके, सो व्हाट इट मीन्स, व्हाट इट सेज, so it says that sum of entering electron is equal to sum of leaving electron. Okay, so sum of entering electron is equal to sum of leaving electron. तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इफ यू विल सी
दिस केवीएल सर्किट, जो केसीएल सर्किट, सो केसीएल सर्किट में क्या हो रहा है कि जो हमारा नोड है ए, इस नोड में द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट, और यहाँ पे क्या हो गया, इंटरिंग चार्ज इज इक्वल टू लीविंग चार्ज, और व्हाट वी कैन से इंटरिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लीविंग इलेक्ट्रॉन। Okay, so let me go to the another point. So KCL applied to any lumped element, lumped electric network. Okay, so you must have to see this lumped element कि हमारा जो KCL है वो सिर्फ लम्प्ड इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए जो है वैलिड होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव सर्किट के लिए हम लोग या फील्ड थ्योरी के लिए हम लोग जो है KCL को अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सो ये क्या होता है, द KCL अप्लाई टू एनी लम्प्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क एंड इट डज नॉट matter whether the element are linear, non-linear, active, passive, unilateral, और bilateral। Okay, so it does not depend upon the element। ठीक है, so what we can write, we can write here the KCL is independent of nature of element connected to the node। कनेक्टेड टू द नोड। तो हमारा जो KCL होता है, दैट KCL इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ एलिमेंट कनेक्टेड टू द नोड। तो हमारा जो भी KCL सर्किट है वो एलिमेंट के ऊपर में डिपेंड नहीं करता। आपका एलिमेंट, इट कैन बी अ लीनियर, इट कैन बी अ नॉन लीनियर, इट कैन बी अ एक्टिव, इट कैन बी अ पैसिव। ठीक है, इट कैन बी अ एक्टिव, it can be a passive, it can be a unilateral or bilateral, it does not depend on the type of the element। Okay, so here what we can write here, another point we can write it here, since there is no accumulation of charge at any node, the KCL express the conservation
conservation of charge at each and every node in a lumped electric circuit. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड कि हम लोगों ने क्या देखा कि जो है हमारा जो पर्टिकुलर केसीएल है, केसीएल में क्या हो रहा है कि कहीं पे भी जो है एनर्जी को जो है चार्ज जो है ना एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, कहीं पे भी वो चार्ज को जो है ना रोक नहीं रहा है। सो क्या हो रहा है, चार्ज का फ्लो हमेशा बना हुआ है, किसी भी नोड पे देखेंगे तो चार्ज वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं हो रहा। तो व्हाट इट मीन्स दैट केसीएल एक्सप्रेस द कंजर्वेशन ऑफ अ चार्ज एट ईच एंड एवरी नोड ऑफ अ लम्प्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, हमारा जो केसीएल है, केसीएल लम्प्ड इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है। सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एनी काइंड ऑफ मटेरियल। सो लेट मी टेल कि अगर यहाँ पे मेरे पास कोई करंट एलिमेंट है, अगर यहाँ पे मेरे पास कोई रजिस्टर है, सो दिस इज आई, अगर यहाँ पे मेरे पास कैपेसिटर है, अगर यहाँ पे मेरे पास इंडक्टर है, ओके, सो दिस इज कैपेसिटर, दिस इज इंडक्टर। तो ये अगर मेरा नोड होगा तो फॉर ईच एंड एवरी नोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर ईच एंड एवरी नोड यहाँ पे आपका जो है ना ये काम करेगा। तो व्हाट इट विल बी, अगर ये करंट है दैट I1, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज द IR, इसको अगर हम लोग IC लें और ये अगर आपका IL है, तो I1 प्लस IC इज इक्वल टू IL प्लस IR। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो सर्किट है, अगर इस पर्टिकुलर सर्किट में देखो तो ये लीनियर जो है सर्किट है, बट दिस पर्टिकुलर सोर्स इज नॉट अ लीनियर, ये क्या है आपका एक्टिव सर्किट है। सो इट्स अ नॉन लीनियर एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट भी है, ये हो सकता है बाइलेटरल हो सकता है यूनिलेटरल हो। सो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, देन ऑल्सो व्हाट योर दिस सर्किट, आपका जो केसीएल है दैट केसीएल इज वैलिड। तो केसीएल इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी सर्किट। तो किसी भी सर्किट को अगर हम लोग देखेंगे, लम्प्ड सर्किट को, किसी भी लम्प्ड सर्किट को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, केसीएल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी गो टू द अनदर के लॉ विच इज व्हाट, केवीएल। अगर हम लोग केवीएल के बारे में बात करें तो केवीएल क्या होगा, इन अ लम्प्ड इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर any of its loop at any time t, the algebraic sum of branch voltage around the loop is 0. So what it means, let me take an example. So suppose if you have this R, you have this C, you have this L and some these kind of a circuit. So this is what V, this is plus minus, this is R,
R में जो है ना, if current will enter from here, so this is going to be plus minus. This is C, this is going to be plus minus. This is L, it is going to be plus minus. So what it is? This is what VR, this is VC, and this one is VL. So what it says that कि if we take the current, if we take this loop, इस loop में अगर हम लोग देखें तो sum of the voltage, sum of all the voltage is equal to 0. What it means that V, this is नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है. So this is नेगेटिव से पॉजिटिव, so V, फिर देन माइनस VR, प्लस से माइनस, ओके, देन अगेन प्लस से माइनस जा रहा है, सो माइनस VC माइनस VL, that is equal to what? 0. That is equal to what? 0. So what we can write? V is equal to VR plus VC plus VL. So हमारा जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज क्या होगा? That is VR plus VC plus VL. Okay? And since what we know, V is equal to W by Q. Okay, we know that voltage क्या होता है? voltage क्या होता है आपका? जो एनर्जी है, वॉट एवर द एनर्जी वी हैव, दैट एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज इज इक्वल टू क्यू. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू वी आर को जो है ना हम लोग क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू आर. लेट मी राइट V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू. सो वी आर इज इक्वल टू WR by Q. The same Q is going to flow in this particular circuit क्योंकि सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं. सो VC is equal to WC upon Q एंड आपका जो VL है that is equal to WL upon Q. तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा? that W is equal to आपका क्या हो जाएगा? लेट मी write it. W upon Q is equal to WR by Q plus WC by Q plus WL by Q. So what we can write? W is equal to WR plus WC plus WL. So this is what we can write. Okay, so what it says? It says the conservation of energy. ये हमारा क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है. सो लेट मी राइट इट डाउन. So let me write it down, the 2 points. What is the first point? So what we have seen that KVL express the conservation of energy in every loop of a lumped electric circuit. Okay, so what else we have seen कि जो आपका KVL है, that KVL is independent of nature of element.
present in the loop. ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा जो KVL है, KVL इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एलिमेंट. अगर इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे V क्या है, दैट इज द एक्टिव एलिमेंट. ये सारे पैसिव एलिमेंट हैं. इट कैन बी अ बाइलेटरल, यूनिलैटरल और डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट. तो ये क्या होता है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ योर एलिमेंट प्रेजेंट इन द लूप. Okay, so let me introduce two thing. अगर हम लोग जो KCL है, KCL और ओम्स लॉ को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हम लोगों का क्या बन जाता है, नोडल एनालिसिस. और हम लोग अगर KVL प्लस ओम्स लॉ अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या हो जाता है हमारा मैश एनालिसिस. ओके, सो अगर हम लोग इसको कंबाइन कर दें तो क्या हो जाता है, इट्स अ मैश एनालिसिस. So let me write some of the concluding thing about this. So let me write one by one some points. Since the KCL and KVL are independent, of each other, the nodal and mesh analysis are independent of each other. Okay, what else we have observed, that K law are independent of the nature of element whereas the Ohm's law is the function of the nature of element. ओके, तो जो हमारा के लॉज होता है दैट आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ द एलिमेंट्स, बट जो हमारा ओम्स लॉ है इट्स a function of nature of a element. So what we have seen the eight different form of
Ohm's law. What we have seen? We have seen the 8 different form of the Ohm's law. तो Ohm's law क्या होता है? आपका जो भी हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट के नेचर के ऊपर में डिपेंड करता है, जबकि जो के लॉज हैं, KCL और KVL, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द एलिमेंट. ओके, what else we have analyzed, what we have seen, else we have concluded. So let me use the another pen. Okay, so what we have seen, the nodal and mesh analysis, mesh process are applied only for the lumped electric field or electric circuit. सिर्फ जो है ना लम्प्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में आप नोडल और मैश प्रोसेस को जो है यूज कर सकते हो. क्यों? क्योंकि जो है ना हमारा जो KCL KVL है, दे आर वैलिड. So what we can write, where the KCL and KVL are valid and to a constant temperature, कांस्टेंट टेम्परेचर. क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होगा, जहां पे मेरा ओम्स लॉ फॉलो होगा, वेयर द ओम्स लॉ इज वैलिड. ओके, सो अगर हम लोग नोडल और मैश प्रोसेस को अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो सिर्फ उन्हीं लम्प्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. तो उन्हीं सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं जो लम्प्ड हो और क्या हो, कांस्टेंट टेम्परेचर में ऑपरेट कर रहा हो. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहाँ पे ओम्स लॉ जो है ना वैलिड नहीं होगा. और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट होगा तो वहाँ पे KCL और KVL जो है आपका क्या होगा, वो वैलिड नहीं होगा. तो हम लोगों को नोडल और मैश प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए जो 2 कंडीशन चाहिए, वो कौन कौन सी चाहिए कि फर्स्ट, योर सर्किट शुड बी लम्प्ड एंड इट शुड ऑपरेट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. ओके, let me write the another point. What else we can observe from this? The Ohm's law is defined across the element that element can be lumped or distributive. So that can be a lumped or distributed. Distributed means what? J is equal to sigma E, if you remember. Okay, whereas the K law are valid only for lumped electric circuit. ओके, जो हमारा ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ आर डिफाइंड अक्रॉस द एलिमेंट
दैट एलिमेंट कैन बी अ लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, बट हमारा जो के लॉ है, के लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द लम्प्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली फॉर द लम्प्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. Okay, so let me write the another point. What the Ohm's law is not applicable for the active element like source, since the voltage and current relation is non-linear, okay. So it is applicable, the Ohm's law, it is applicable to the linear passive element like R, L and C. Okay, so whenever we talk about the Ohm's law is not applicable for the active element like a source, since the voltage and current relations are not linear. तो जब भी हम लोग जो है ना सोर्सेज के बारे में बात करेंगे तो सोर्स में क्या होता है कि आपका जो करंट है और जो वोल्टेज है दे आर नॉन लीनियर, तो वहाँ पे क्या होगा, ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा. इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द लीनियर पैसिव एलिमेंट. जो लीनियर पैसिव एलिमेंट जैसे आर एल सी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो let me just go through this once again. Let me summarize this lecture. In the next class we are going to see the nodal analysis and the mesh analysis. ठीक है, उसको हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो लेट मी समराइज विद अ वेरी फ्यू मिनट्स कि आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, के लॉ देखा जो किरचॉफ लॉ होता है. के स्टैंड्स फॉर द किरचॉफ लॉ. किरचॉफ लॉ में क्या होगा कि वी हैव द करंट लॉ एंड वी हैव द वोल्टेज लॉ. तो जो हमारा KCL है, KCL क्या होता है, दैट करंट लॉ व्हाट इट इज डिफाइंड एट अ नोड. तो नोड क्या होता है, हमारे पास सिंपल नोड होता है, प्रिंसिपल नोड होता है. सिंपल नोड में ओनली द 2 ब्रांचेज आर देयर और प्रिंसिपल नोड में मोर देन 2 ब्रांचेज आर देयर. ओके, सो इट कैन बी 3 और मोर देन 3 और मोर देन 3. सो लेट मी राइट इट मोर देन 2. ओके, तो यहाँ पे हम लोग अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही ब्रांच है, सो इट्स अ सिंपल नोड. तो अगर हम लोग जो है इसको भी देखें सो दैट इज ऑल्सो, अगर इसको हम लोग एक नोड की तरह लें, सो दिस इज व्हाट ब्रांच 1, दिस इज व्हाट ब्रांच 2. तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक जो है ना सिंपल ब्रांच हो जाएगा. सो इट्स अ सिंपल नोड. और ये क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल नोड जहाँ मोर देन 1 ब्रांचेज आर देयर. ओके, देन अगर हम लोग KCL को डिफाइन करेंगे तो KCL क्या होता है, KCL इन अ लम्प्ड इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर एनी ऑफ इट्स नोड एंड एट एनी टाइम t द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट लिविंग द नोड इज 0. तो क्या हो गया, आपका जो KCL है, KCL क्या हो रहा है कि आपका जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द लम्प्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. हमारा ये जो KCL है लम्प्ड इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए डिफाइन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव सर्किट के लिए जो है ना डिफाइन नहीं है. तो ये क्या हो गया कि जब भी लम्प्ड इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करें तो ऑल द इंटरिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट, इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू लीविंग चार्ज, इनकमिंग आपका जो है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द लीविंग इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज व्हाट योर
KCL। KCL के बाद में जो है ना हम लोगों ने और देखा कि जो हमारा KCL है इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट, it's not dependent on the nature of the element, whether it's active, passive, bilateral, unilateral or any kind of element। और क्या हम लोगों ने देखा कि जो KCL है, KCL इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। KCL आपका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अगर हम लोग KVL के बारे में बात करें तो KVL क्या है, KVL इज अ कंजर्वेशन ऑफ, इट्स अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। KCL कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, KVL कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और अगर हम लोग KVL के बारे में बात करें तो KVL क्या होता है, द एलिजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ लूप इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, KVL हो गया। तो KVL को भी हम लोगों ने देखा कि KVL ऑल्सो डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट। और हम लोगों ने क्या देखा कि KCL, जो आपका KCL है, किरचॉफ करंट लॉ प्लस ओम्स लॉ, ये दोनों मिलके क्या होते हैं, आपका नोडल एनालिसिस बनता है। KVL प्लस ओम्स लॉ जो है ना आपका मैश एनालिसिस बनता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है आज का ये जो क्लास था हमारा, इसको हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप जो है आपको KCL और KVL जो है समझ में आया होगा। हमारा जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस के बारे में देखेंगे और मैश एनालिसिस के बारे में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।